Hello everyone, welcome to my YouTube channel PhysicaTube. In this video I will discuss some important MCQs on quantum mechanics like MCQs on Compton scattering, wave particle duality, that is de Broglie hypothesis, wave functions and commutation relations. If you are preparing for any kind of competitive exam in physics, then must watch this video till end, and if you like the video please subscribe the channel. So let us start. The first question is the kinetic energy of an electron having de Broglie wavelength 2 angstrom is. तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी निकालनी है. डे ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, एंड फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन वी नो दैट एनर्जी जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट we divide and multiply by m. so आपके पास आ गया m स्क्वेयर v स्क्वेयर ओवर m. it means energy is equal to p square by 2m. so from here we can find value of p. so p की वैल्यू आ गई 2m e square root. substitute this value in this equation. so lambda is equal to h upon root 2me. so this is the relation between the de Broglie wavelength and the kinetic energy of the electron. so from here we can find value of E. so square both sides. E is equal to h square over 2m lambda square. now substitute value of Planck constant h. mass of the electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram, and lambda is de Broglie wavelength which is 2 angstrom. 2 into 10 raised to power minus 10 meter which is given. so when we substitute the values and solve, we will get value of energy E is equal to 37.5 electron volt. so right option is B. Next question is X-rays of wavelength 10 picometer are scattered from free electron. The maximum wavelength present in the scattered X-rays is. तो यहाँ पे X-rays जो हैं they are being scattered from electron. तो electron goes this way suppose, and the scattered X-rays goes like this. Angle made with the scattered X-rays, and this axis is called phi, and this process is called Compton scattering. in case of Compton effect, the wavelength of the scattered X-ray क्या होता है कि जो फोटोन जो इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज़ हो जाती है, मींस वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी. इसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो जो स्कैटर्ड एक्सरेज जो है दैट इज़ वेवलेंथ लैम्डा डैश. सो लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा, and lambda dash is given by lambda plus lambda c 1 minus cos phi, where phi is the angle of the scattered X-ray or scattered photon with this axis. so हमें निकालनी यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब ये जो है मैक्सिमम होनी चाहिए वेवलेंथ लैम्डा डैश. तो मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी. तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन फाई इज़ इक्वल टू पाई, क्योंकि फाई पाई हो जाएगा तो उस केस में आपका कॉस पाई जो है -1 हो जाएगा. सो लैम्डा डैश इज़ इक्वल टू लैम्डा प्लस, तो -1 यहाँ से अगर आ गया तो ये टर्म हो गई 2, तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी. लैम्डा सी इज़ कॉम्पटन वेवलेंथ विच इज़ इक्वल टू h अपॉन एम सी. एंड इसको सॉल्व करके जब h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लैंक कांस्टेंट की, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो देन दिस वैल्यू इज़ 2.42 picometer. so now we substitute this value in this equation. so lambda is the wavelength of the incoming X-ray which is 10 picometer and 2 times 2.42. so when we solve this we will get the value approximately equal to 14.8 picometer. so correct option of this question is B. Next question, an electron of mass m is moving such that its momentum is equal to that of a photon of
वेवलेंथ लैम्डा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास m है, एंड अगर मास m है तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv। and second thing is this momentum, which is we can say p, is equal to momentum of a photon of wavelength lambda. So according to de Broglie principle, the momentum and wavelength relation is lambda is equal to h upon p. So the momentum of a photon is equal to h upon lambda. Now this momentum, which is momentum of a photon, is equal to momentum of electron. So Pe is equal to P gamma when we equate both mb m into v equal to h upon lambda. So from here we can find velocity of electron is equal to h upon m lambda. So this v is velocity of electron, v और v e इसको लिख सकते हो. A is the correct answer. Next question. In Compton scattering, from scattering electrons, the largest change in wavelength occurs when the photon is scattered through. तो यह भी हमने डिस्कस भी करा है Compton scattering में. So lambda in case of Compton scattering, the wavelength of the scattered photon is equal to lambda dash, which is lambda plus lambda c into 1 minus cos phi. Here this is the wavelength of the scattered photon, which is more than the incident photon. This is wavelength of incident photon. Lambda c is Compton wavelength and phi is the scattering angle, the angle at which the photon gets scattered from the electron. So with this axis, this angle is phi. So we have to find that when this lambda dash is maximum. So this lambda dash is maximum when this value is maximum. This value is maximum when cos phi is equal to -1. अगर cos phi -1 होगा तो ये टोटल टर्म जो है 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. और cos phi -1 होने का मतलब है आपका जो एंगल है फाई, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री. So correct answer of this question is D. Next question is the photoelectric emission of K shell electron with binding energy of 3.2 electron volt is caused by a 6.5 keV photon. Kinetic energy of the emitted electron is. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे के शेल इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रही है एंड ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की. तो आपको पता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इट इज़ इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और समटाइम्स वी से द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमारे पास फोटोन की ये वाली एनर्जी गिवन है 6.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन इज गिवन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्लस द किनेटिक एनर्जी. ये जो 3.2 है दिस इज केवी, यूनिट सेम है केवी. सो यहाँ से हम किनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. ये माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाके. किनेटिक एनर्जी इज 3.3 केवी. करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. द नेचुरल विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन की जो नेचुरल विड्थ है वो किस रिलेशन से एक्सप्लेन करी जा सकती है. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन एंड व्हाट इज विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. सो व्हेनेवर in molecular spectroscopy the spectral line can be of two type. One is sharp spectral line. If spectral line is sharp it has no width. If spectral line is not sharp means it is broad, then it has some width, and the width of the spectral line is related with the time spent by the atom or molecule in the excited state, and if that time is denoted by tau, which is mean lifetime, tau is equal to h upon lambda. This lambda is width of the spectral line,
and lambda is related with delta E. Similarly, tau, which is mean lifetime, it is related with delta T. So from here we can write that delta E and delta T is equal to H upon delta E, which is the uncertainty principle, delta E into delta T approximately equal to H cut. The correct answer C. So this natural width of spectral line can be explained with this uncertainty relation. Next question is, a photon has momentum of 1 keV per c. The energy of the photon is. So we know the relation between the energy of photon and the momentum is equal to pc. आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम करते हैं ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी पावर 4. Since rest mass of photon is 0, so this term becomes 0. So from here we will get the relation E equal to Pc. So here P is given, we have to find the energy. P is 1 keV per c and into c हो गया, मीन c कैंसिल हो गया. So energy of photon is 1 keV, 1 kilo electron volt. Right option is D. Next question is, which of the following phenomena are explicable using wave nature of light. तो ये 4 फिनोमेना गिवन है, किसको आप वेव नेचर ऑफ लाइट यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हो. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यूज़ करते हैं. कॉम्पटन इफेक्ट भी सिमिलर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है. सिमिलरली इज द ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट. ओनली डॉपलर इफेक्ट is explained using the wave nature of light. So if the observer is moving away from the source, अगर source की frequency f0 है and observer जो observe कर रहा है frequency f है, and if observer is moving away from the source, then the frequency which is observed by the observer is given by 1 minus v over c over 1 plus v over c. एंड इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवार्ड्स द सोर्स, तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा. सो दिस इफेक्ट इज़ डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट विच इज़ एक्सप्लेन्ड यूजिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट. राइट आंसर इज़ बी. नेक्स्ट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉन्जुगेटिव वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स गिवन है, इनमें से कौन से वेरिएबल कॉन्जुगेट वेरिएबल नहीं है. सो फर्स्ट इज, व्हाट आर द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स. कॉन्जुगेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लाइक एनर्जी एंड टाइम आर कॉन्जुगेट वेरिएबल्स. ठीक है, मोमेंटम एंड पोजीशन आर कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, एंड जे एंड थीटा एंगुलर मोमेंटम एंड ओरिएंटेशन जो होती है वे, ये दोनों भी कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है. एक्स एंड पी एक्स एज दे सेटिस्फाई द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं. दूसरी चीज़ इसके लिए क्या होती है कि कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जो होते हैं उनका कॉम्यूटेटर जो होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो इन दोनों का कॉम्यूटेटर तो जो है वो ज़ीरो आएगा. तो इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए. नेक्स्ट इज़, इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी विच अमंग दैम हैज़ लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी. तो हमें 4 पार्टिकल गिवन है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी सेम है, फ्रिक्वेंसी बतानी है. तो जब पार्टिकल के साथ फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैटर वेव्स. तो मैटर वेव्स के केस में हमें अगर सेम वेलोसिटी है गिवन, ठीक है, और हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे. हमें पता है जो लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है विच इज़ the wavelength of the wave which is associated with matter which is equal to h upon p. ठीक है, p मोमेंटम है यहाँ पे, तो h upon p की वैल्यू mv सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, इट मीन्स मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, लैम्डा. और यहाँ पे हम लैम्डा निकाल लेंगे फर्स्ट. तो जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली जो वेवलेंथ मीन्स लैम्डा ऑफ प्रोटोन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटोन. एंड जो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल.
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे मैसिव कौन है तीनों में से। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मैसिव, सो वेवलेंथ स्मॉल होगी, सो लैम्डा अल्फ़ा जो है इट इज़ स्मॉलेस्ट, और जिसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट होगी। इट मीन्स जो न्यू अल्फ़ा है इट इज़ मैक्सिमम और लार्जेस्ट। सो आउट ऑफ द 4 पार्टिकल्स जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है वो किसकी होगी, अल्फ़ा पार्टिकल की, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर वेव फंक्शन। दिस इज वेव फंक्शन गिवन है और जो वेव फंक्शन है दिस इज रियल, ठीक है। और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी विच इज जे, एंड जे इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट ओवर 2m। इसका फॉर्मूला ले लेते हैं हम करंट डेंसिटी का, साई स्टार। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। यहाँ पे जो साई है क्योंकि वो रियल है तो जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए ई पावर माइनस 2kx, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ ए माइनस 2k ई पावर माइनस 2kx, एंड सिमिलरली यहाँ पे साई की वैल्यू लिखेंगे ए ई पावर माइनस 2kx। क्योंकि रियल है तो जो साई है और साई स्टार है वो इक्वल ही होंगे, तो वहाँ से हम इसको भी साई लिख सकते हैं और इसको भी साई लिख सकते हैं, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे डेरिवेटिव, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। सो बोथ टर्म्स आर इक्वल, सो इट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो करंट डेंसिटी इसकी सॉल्व करके आ जाएगी ज़ीरो। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो पूरा, चाहे आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि साई जो है वो रियल है तो साई स्टार और साई सेम ही होंगे, तो यहाँ पे साई सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे साई कर दो, कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो जे की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। सो करंट डेंसिटी इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर पी एक्स इज़, एक्स स्क्वेयर पी एक्स का कॉम्यूटेटर निकालना है। कॉम्यूटेटर का फॉर्मूला वी नो, एक्स स्क्वेयर पी एक्स ओवर अ वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पी एक्स साई माइनस पी एक्स स्क्वेयर साई। तो यहाँ पे पी एक्स जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मोमेंटम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इस ऑपरेटर का वैल्यू आपको पता है माइनस आइटा एच कट कर ली ओवर कर ली एक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, माइनस यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू करेंगे माइनस आइटा एच कट कर ली बाई कर ली एक्स। तो दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या है कि फर्स्ट वाली टर्म जो है वहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना है सिर्फ साई का, और सेकंड टर्म क्योंकि दोनों पे डेरिवेटिव जाएगा तो यहाँ से दो टर्म्स आ जाएंगी। तो जो फर्स्ट टर्म आएगी माइनस आइटा एच कट एक्स स्क्वेयर कर ली साई ओवर कर ली एक्स, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आइटा एच कट, तो कर ली ओवर कर ली एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 2x आ जाएगा, एंड साई तो आएगी साथ में, a इंटू वी फॉर्मूला लगाना है डेरिवेटिव का, अगेन प्लस आइटा एच कट एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा और साई का डेरिवेटिव हो जाएगा कर ली साई ओवर कर ली एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप कि जो ये वाली टर्म है ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 आइटा एच कट एक्स साई। तो साई तो दोनों साइड ही है, इस साइड भी साई है, ठीक है ये वाला, तो इसलिए जो ये कॉम्यूटेटर आएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आइटा एच कट एक्स। सो द राइट आंसर इज बी।